सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम Yes, Ashish Agrawal. हाँ महाराज जी प्रणाम। Yes, yes. हाँ हाँ माइंड एंड इट्स कंट्रोल, द नेचर ऑफ माइंड, Yes, yes, yes. why it is hard to meditate. Meditation is possible only when the thought waves in the mind subside to a great extent. We complain that the noise outside disturbs our meditation, but the noise inside is far more disturbing. The mind may be dull with tamas or restless with rajas. It is full of vrittis all the time. Yoga is the process of controlling and sublimating these modifications and finally eliminating them altogether. The dull or restless mind should be elevated into the harmony of sattva, and for this, introspection is necessary. We have to discover the nature of our mind. The mind should be elevated by means of prayer and meditation. Then it would start enjoying peace. How to overcome mental distractions? The mind can be calmed to a great extent through japa. Purification of the mind is necessary before it could be calmed down. For this purpose, thoughts, words, and actions should always be made to correspond to one another. This is the essence of truth. Truth is quite essential for mental peace and spiritual advancement. Evil thoughts may arise in the mind. They can be eliminated by constant practice and renunciation. There is no other way. Surrender yourself to the Lord. Make Him your own, and evil thoughts will go away. As you fill your mind with His infinite love and His infinite bliss, evil thoughts would be replaced by noble ones, and the mind would become purified. The condition of the mind corresponds to its position in the chakras. Always try to raise your mind to the higher chakras. Enter the temple of your own body heart. Enter the temple of your body through your heart. Here it is not the physical heart that is meant, the center from which our emotions rise in the heart. Sometimes we feel sleepy during meditation. The remedy is to keep the eyes half open and repeat the mantra, dwelling on its meaning. Many silly thoughts and pictures arise in our minds while we sit for meditation. Their frequent appearance in mind shows that we have more interest in them than in God. There is a technique to get rid of these unwanted thoughts. Throw mercilessly into the burning flame of divine light all those pictures that arise in our mind other than divine pictures. Merge all the divine images into your istam, and by an effort of the will, try to concentrate on the istam. By regular practice, we can bring the mind under control, and this is conducive to the establishment of a constant spiritual mood, giving one a taste of inner joy. A devotee complains about the constant unrest of his mind. He asks, should we wait for the proper time and move to practice spiritual disciplines? It would be like waiting for the waves to subside so that one could bath in the sea. We need more solace when the mind is not at rest. We need God more when we have to face the difficulties and troubles of mind. Hence, the instruction, the more you feel anxious, the more you should think of God. Connect all your miseries with the name of the Lord. What will happen then? We would gain strength to bear our troubles. We rise to a different plane of consciousness. When we become the witness of our thoughts and troubles, don't come down and get involved in the lower planes. That is the secret. Another secret is fill up all your spare moments with the name and thought of the Lord. We brood over imaginary problems and create real problems. We increase our troubles beyond all proportion by brooding over them. Instead of that, why not brood over the Lord? Mantra has a great power. You must repeat it. It gives you a new understanding. Be watchful. You must always watch and find out your mistakes and try to correct them. Be an impartial judge of your own mind. Be severe and do not give in when the mind projects
lame excuses to justify its faults. Often, it would plead that circumstances are not conducive to meditation. It is no use waiting for better circumstances to begin spiritual practice. One should face any problem that might crop up in life and continue one's spiritual practice regularly. Then success is certain. How can one control the mind? By practice and dispassion as stated by Sri Krishna in the Gita. Practice should be done in the right way and with the right attitude. Any amount of practice will be fruitless if the anchor is not removed. Practice of japa will bring mental peace and the body too will become healthy thereby. It will elevate the mind and widen the vision. By untiring constant practice, the mind finds peace in God forever. Observe your mind always. Be aware of the vrittis, the thought waves that you are raising throughout the day. The same thoughts will come up during our meditation. Work with the idea of self-surrender. Swami Turiyananda would always repeat Bhagavad Charanam, meaning that he was surrendering himself to the Lord, who alone was real. Self-control and elimination of certain unhealthy thoughts are essential. Concentrated japa and deep meditation will eliminate them. We must always be alert, and if low thoughts come, boldly tell them that they are not wanted. We must drive them away. We should never keep the mind blank. If there is a void, the tendency is that bad thoughts will fill it up. The mind should therefore be filled with good thoughts. We can either read the scriptures or repeat the holy text. Reading Patanjali's definition that yoga is chitta vritti nirodh. Some think that yoga is a state of mental void. It is not a blank state of mind that is referred to here, but a state above all thoughts. It is beyond good and evil. To achieve it, we should think of noble thoughts for long years. As Swami Vivekananda says, dream truer dreams. We must dream true dreams, noble dreams, which will ultimately lead us to the truth. In order to go beyond both good and evil, we must lead a moral life and entertain spiritual thoughts instead of worldly thoughts. Some are under the impression that the purpose of yoga is to create a void by forcibly stopping the functioning of the mind. It is not wise to create a void in the mind. The mind should be elevated and filled with holy and noble thoughts. However, the void spoken of in the scriptures is of great value. It is the void where all names and forms are reduced to their essential nature, namely the pure spirit or consciousness. Ordinarily, any attempt to create a void invites sleep. You will be sitting on the asana in the proper position, but fall asleep. This is not good. Hypocrisy. Without achieving control of mind and peace in this manner, to say that my mind has subsided, it is now under my control, etc., is hypocrisy and self-deceit. Shri Ram Krishna has said that thoughts and words should correspond to each other. What does this mean? He means that one should maintain complete sincerity. One who is sincere cannot find fault with others. Those who do find fault have dirty minds. If our thoughts and deeds do not correspond to each other, we are just fooling ourselves. There are people who bring tears to their eyes with great effort and pose themselves as great devotees, doing japa and meditation in a way that makes others take them to be great devotees. This also is hypocrisy. It greatly harms us. We want God to fulfill our petty desires. We do not sincerely want Him for Himself. We are only fooling ourselves, harming our spiritual progress when we put in any pretension. When we do not do any wrong, we find many excuses to justify ourselves, which we are not really prepared to accept. Thus, we practice hypocrisy. The mind is our greatest enemy. At any moment, it may give away. When we analyze it, we find a lot of justification for our wrong actions. And where we are not able to see the fault in ourselves, we blame others. We should always be very, very careful, and a great deal of sincere analysis is necessary. Some devotees complain that they cannot do spiritual practice regularly for various reasons, such as lack of time, restlessness of mind, etc.
Often, they do not reveal the real sources of their mental disturbance. It is of no use to hide anything hidden factors. It is of no use to hide anything. Hidden factors are a burden to the mind and they act as impurities. Then the mind will not be calm. Open your heart to God. Lead your life in such a way that you need not hide anything from anybody. For this, you have to prepare your mind and regulate your living habits. We may derive satisfaction from repeating the Lord's name 1,000 times. But how many times has he heard it? Maybe not even once, because of our want of sincerity. When taking his name, we should think of him, not allowing the mind to wander about. Doing japa in this manner is really yoga, for yoga is controlling the modifications of the mind. You say solitude is necessary. The solitude that is wanted is mostly mental. Sublimation of tendencies. There are 6 enemies: desire, anger, greed, delusion, pride, and jealousy. We have to spiritualize them. We cannot completely get rid of our passions, but we can give them a new turn. We have to give them a spiritual direction. All emotions should be directed along spiritual channels. Turn towards that which never perishes. When you think of nature's beauty, think of the creator of that beauty. Once Swami Vivekananda saw the moonlight sea from the deck of a ship. It was enchanting. He looked on and exclaimed, if Maya is so very beautiful, how much more the creator be? People generally complain that they have not attained anything even after long years of spiritual practice. If we analyze our minds, we will find that almost all the time we think on egocentric lines, such as I pray and do japa, and there is no result, etc. Instead of wasting energy in egocentric thinking and acting, if we had concentrated on God, it would have been useful. Devotees should really be very careful about such delusive thoughts. If they do not root out this I consciousness in the initial stages, it will be very difficult to do so later. Therefore, offer everything to Him and work to please Him. This is the only way to overcome the ego. Some people complain that their minds do not plunge into sadhana even after a long period of practice. It is because the mind is still full of sand, that is ego, which cannot melt in the water. We have to increase the proportion of salt in us so that we may get dissolved. The ego is to be purified. Cultivate the feeling that I am child of God. I am a servant of God. Then your little ego becomes merged in the infinite spirit. The progress is not from matter to spirit, but from spirit to spirit. There are 2 currents of power, worldly and spiritual. An aspirant should strengthen the spiritual current. Ordinarily, the mind functions at 2 levels, the upper and the lower, the conscious and the subconscious. An aspirant has to spiritualize not only the conscious mind, but also the subconscious mind. Try to raise the spiritual current on the conscious plane. Then it should be strengthened and extended to the lower planes. Many complaints of lust, which rears its heads even during meditation and disturbs concentration. The fact is that lust disturbs all aspirants. One should not mind it. Abstention from food which irritates the stomach and is hard to digest helps a great deal in controlling lust. But we take food through our senses also, through our eyes and ears. Discrimination should be observed in that regard too. Do not dwell on past mistakes. By thinking of past mistakes, the mind gets weakened. Sin exists only in man's eyes. There is no sin in God's eyes. Believe yourself to be a spiritual being, Atman. Sin exists only as long as one identifies oneself with the body. If we keep our mind always in communion with God, all the worldly tendencies of the mind will vanish. If bad tendencies arise in the mind, we should not pay heed to them. When they crop up, we should take the help of the holy name. When it is repeated sincerely, bad thoughts wither away by themselves. It is necessary that we take the help of the mantra on such occasions, because sometimes reasoning will take us nowhere, as we do not have enough strength of mind to remain
commonly said that one should eliminate worldly thoughts from one's mind. This is a negative attitude. Positive action is to think noble thoughts and do spiritual practice. क्या हुआ? खत्म करो. It is commonly said that one should eliminate worldly thoughts from one's mind. This is a टाइम हुआ. negative attitude. खत्म करो. हो गया? हाँ, बस एक पैराग्राफ बचा है. Positive action is to think noble thoughts and do spiritual practice. Walk in the direction of God and all worldliness will gradually leave you. Always think you are the Atman. By training the mind to dwell increasingly on noble thoughts, baser thoughts can be kept away. By practice, the mind should be made to dwell on higher planes. Japa and meditation strengthen our willpower and purify our mind more and more. Japa should be practiced with great regularity and earnestness. If you do not feel any taste for it, you should not give it up. In spirituality, if we do not find any interest in repeating His name, we should not stop the practice to take root in the mind, leading to spiritual death. हो गया स्वामी जी? ठीक है. हाँ महाराज. अच्छा, थैंक यू. ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये साधना की दृष्टि से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर. जप के संबंध में भी है, दूसरे भी हैं, मन के विचारों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए. हाँ महाराज. अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. सबसे पहले दिलीप भाई, दिलीप शाह. प्रणाम. हाँ, प्रणाम महाराज. Mind should be active and dynamic. When mind is active and dynamic, then all the more it moves to Maya and worldly activities, and we go far away from meditation. This is my problem. तो फिर क्या करना चाहिए आप ही बताइए. डायनेमिक और माइंड डायनेमिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. आपने तो क्वेश्चन रेस कर दिया, जवाब आप ही बताइए क्या करना बोलिए. नहीं तो मेरे को तो सॉल्यूशन चाहिए महाराज आपसे. क्या इसमें लिखा हुआ है कि इट शुड बी फर्स्ट एक्टिव एंड डायनेमिक. तो जब माइंड एक्टिव और डायनेमिक होता है, एक्टिव नहीं करेंगे, यदि माइंड को एक्टिव नहीं करेंगे तो डर हो जाएगा, सो जाएगा. कैसा करेंगे? लेवल होते हैं ना, तामसिक, राजसिक, सात्विक. नहीं, तामसिक, राजसिक, सात्विक के तीन समझते हो ना. आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही? क्लियर नहीं आ रही है. एक मिनट सरो. महाराज लगा लेता हूँ. मुझे भी करना पड़ेगा ये सब. मैं सोच रहा था कि आवाज आ जाएगी, क्यों नहीं आ रही है क्लियर. अब आवाज आ रही है क्या? हाँ. दिलीप भाई? हाँ, आ रही महाराज. अच्छी आवाज आ रही है? नहीं, अच्छी नहीं. अरे तो फिर कैसे आती है? कटी हुई आ रही है, कटी हुई. तो क्या करूं? मैंने फोन लगाया था, ये प्लग लगाया था, तो उससे भी आप बोल रहे हैं कि नहीं आ रही पूरी. चलो अब बोलिए कैसी आ रही है? चलेंगे महाराज. अब आवाज बताइए कैसी आ रही है? नहीं महाराज, आवाज तो ये बेटर है कि पहले बेटर है? नहीं, ये आवाज बेटर है कि पहले वाली बेटर थी?
दोनों ही बराबर चल रही है, कटी हुई। अच्छा ठीक है चलने देते हैं, देखें अभी कैसा कर। चलने दे महाराज जी। अच्छा, पहला आपका प्रश्न है तो उसका ये बात कहना है कि तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये 3 प्रकार की एक्टिविटी डल माइंड हुआ। दूसरा है राजसिक एक्टिविटी, और सात्विक एक्टिविटी क्या है? इंटेंस एक्टिविटी, फुल्ली कंट्रोल। याद रखो जी, यानी उसमें इतना कंट्रोल है, मोस्ट एक्टिव बट फुल्ली कंट्रोल। राइट जी जी। स्वामी विवेकानंद के पास भक्त जो शिष्य गए, कुछ युवक गए थे, तो वो दुबले पतले थे, उन्हें ताकत नहीं थी। स्वामी जी ने उनको देख के कहा कि अच्छा तुम डाका डाल सकते हो? वो चुप रहे। और चोरी कर सकते हो? वो चुप रहे। तो स्वामी जी आप ये क्या बोल रहे हैं, हम तो साधु बनने आए हैं। अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, साधु बनना क्या इतने आसान है? बहुत एक्टिविटी चाहिए। तुम में अगर डाका डालने की शक्ति नहीं है, चोरी करने की शक्ति नहीं, तो साधु क्या बनोगे? सुनाई दिया दिलीप भाई? बिल्कुल बिल्कुल जी महाराज जी। हाँ, तो मतलब यह है कि इंटेंस एक्टिविटी इज नेसेसरी जी, बट फुल्ली कंट्रोल इंटेंस एक्टिविटी इज कॉल्ड सात्विक वन। जी महाराज। तो तीव्र एकाग्रता और तीव्र एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और नहीं तो आपने जैसा कहा ना कि अगर फालतू सोते रहना ताकत नहीं है, उसके बदले तो बाबा डाका डालना ही ठीक है, उसमें ताकत तो है। और ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसी शक्ति है ना, तो वो लोग आगे चल के बहुत बड़े संत बन जाते हैं जिनमें ऐसी शक्ति हो। अरे धर्म के लिए भी तो एक्टिविटी चाहिए ना दिलीप भाई? जी जी बराबर जी। हाँ, बीच बीच में बोलते जाना जी। तो बिना एक्टिविटी के तो धर्म भी संभव नहीं है। बराबर जी महाराज। आपके क्वेश्चन का उत्तर हो गया? हाँ हो गया महाराज जी, बिल्कुल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। At times it is said that silence is better Second than question. spoken. Yes Maharaj. At times it is said that silence is better than spoken truth for mental peace. Here in article it is written, truth is quite essential for mental peace and spiritual advancement, which is what I should accept it. अच्छा सुनिए, जो सत्य के बारे में जो कहा है, आपने कहा ना, ठीक ही कहा है कि चुप रहना चाहिए कभी कभी जी। तो कहा जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम नानृतम प्रियम ब्रूयात एष धर्म सनातन। क्या बोलो? सत्य बोलिए लेकिन प्रिय सत्य बोलिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। एक आदमी कहना है तो बोलेंगे अरे कहना है तुम कैसे, कहां से आए हो? सत्य तो बोला है उसको, लेकिन उन्हें घर का दिल दुखाया ना, तुमने ऐसा नहीं करना। तो ऐसा है कि सत्य के भी बोलने के नियम होते हैं, सत्य का आचरण भी करना आवश्यक है। याद देखिए, सत्य के बिना इन द लॉन्ग रन शांति नहीं होती। असत्य को करके आप अधिक समय तक नहीं रह सकोगे। इसलिए सत्य का आचरण भी करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जब मर्जी में आए तब सत्य बोलेगा। और ऐसा नहीं कि झूठ बोलना, किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना, ये भी अलाउड नहीं है। नानृतम प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो लेकिन झूठ मत बोलो। तो ये सत्य बोलने के ये नियम है। और याद रखिए, सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य नहीं जाता। तो सत्य का पालन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके नियम है, यह जानकर सत्य करिए। राइट जी। आपका प्रश्न हो गया? हो गया महाराज, बराबर जी जी। अच्छा। Now next, while doing worldly work, chanting mantra and divine pictures of our East, can we establish spiritual mood and get involved in the lower planes? समझा नहीं प्रश्न जो तुम्हारा? हाँ। अगर ठीक ठीक भगवान का चिंतन किया जाए जी, संसार के काम करते हैं, ठीक ठीक भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, तो मन लोअर प्लेन में नहीं जाएगा। अच्छा। मन को ऊपर रखने के लिए ही ये किया जा रहा है।
ऐसा नहीं होता। अगर आपने देखा है कि आपका मन नीचे जा रहा है और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मतलब ये है कि ठीक हुआ नहीं। अगर भगवान का नाम लेवे तो उसके भगवान का चिंतन होगा, स्मरण होगा, और उसके बाद आपका मन ऊपर आएगा, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सोचना कि हम जब काम कर रहे हैं, संसार के काम कर रहे हैं और मन भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो मन नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक ठीक करने पर मन नीचे नहीं जाएगा। मन को ऊपर उठ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है भगवान का चिंतन करना। तो जस्ट अपोजिट है, कहीं तुम्हारे समझने में दिक्कत हो जाएगी। Next, in Gita, Sri Krishna says, practice should be done in the right way and with the right attitude. What is right way and right attitude? तो वो उसमें तो गीता को पढ़िए, वो जो पॉइंट है वहां पर क्लियरली लिखा है उन्होंने कि उसके बाद में जो यहाँ पर पढ़ा है आपने ना, उसका पैसेज पूरा पढ़िए तो जरा जी। How can one control the mind? By practice and discipline, as stated by Sri Krishna in the Gita, practice should be done in the right way and in the right attitude. जी आगे पढ़ूं क्या? तो ऊपर राइट वे बता दी। नहीं पहले पढ़ दिया आपने, दूसरी लाइन में है, पढ़ दिया, बता दिया, फिर से पढ़ो। How can one control the mind? By practice and discipline. फिर से पढ़ो, उसको उधर क्लियरली बता। वो प्रैक्टिस एंड डिस्क्रिप्शन, दिस इज द राइट वे। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गृह्यते, ये गीता की बात है जी। तो भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, और उसके साथ ही साथ वैराग्य होना चाहिए, डिस्पर्शन, डिटैचमेंट। वैराग्य और अभ्यास ये है राइट वे। ओके, तो ये वहां पर क्लियरली छोटा सा लिखा हुआ है, और वो छठा अध्याय गीता का है, उसमें भगवान ने और भी डिटेल दिया है व्हाट इज द राइट वे। वो छठा अध्याय गीता का है, उसको आप पढ़ लो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बराबर जी महाराज जी। महाराज इसके अंदर एक मिनट और मैं जानना चाहूंगा कि वैराग्य के लिए राइट एटीट्यूड से मतलब क्या रहेगा? राइट एटीट्यूड नहीं ये ना, वैराग्य का अर्थ है राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यह है कि संसार की वस्तुओं की तरफ हम किस दृष्टि से देखेंगे, वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे। हम संसार के प्रति अनासक्त रहेंगे, भोग की तरफ मन को नहीं ले जाएंगे, ये हुआ राइट एटीट्यूड। तो वैराग्य के अंदर आ गया जी। राइट राइट महाराज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग प्लेस ऑफ लॉ थॉट टू टेक रूट इन द माइंड लीडिंग टू ए स्पिरिचुअल डेथ। ये सेंटेंस को एलाबोरेट यदि आप कर दें। अच्छा, मन में अगर निम्न विचार, गंदे विचार आएंगे तो क्या होगा? ये दो प्रकार की मृत्यु की बात है यहाँ पे, एक शरीर की मृत्यु और दूसरी है स्पिरिचुअल, आत्मा की मृत्यु। जी जी। तो आत्मा तो मरती नहीं है। अगर आप आत्मा से दूर चले जाएंगे, स्पिरिट नहीं मरती है, लेकिन अगर उसको आप दूर चले जाएंगे, आप शरीर के स्तर पर आ जाओगे, तो क्या होगा? आप ये एक प्रकार की स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी। समझे? निम्न विचार यदि आएंगे, तो निम्न विचार का मतलब क्या है? आप शरीर के संबंध में विचार करने लगे, अब आत्मा के और भगवान के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो, खाने पीने के संबंध में विचार कर रहे हो, शरीर को अच्छा रखना है, या फिर भोग के बारे में विचार कर रहे हो, ये लोअर थॉट्स में। मतलब ये क्या है? फिजिकल लेवल पे आ गए, तो ये शारीरिक स्तर पर आ गए, तुम आत्मा से दूर हो गए, और आत्मा से दूर हो गए, ये हुआ स्पिरिचुअल डेथ। समझे? मतलब ये है कि आत्मा से दूर जाना, भगवान से दूर जाना, दिस इज ए स्पिरिचुअल डेथ। और अगर आप मन को नीचे के स्तर पर रखेंगे, बुरे विचार सोचेंगे, तो आप आत्मा से भगवान से दूर जाएंगे, ये स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगा। ठीक है? In deep sleep we commune with the eternal, but we are not in a conscious state of at that time.
क्या वास्तव में हम ईश्वर के साथ होते हैं उस वक्त? हाँ जी, ऐसा है कि हम तो अभी भी ईश्वर के साथ हैं, लेकिन हमारा मन चंचल है। हम मन का बहुत बड़ा एक आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हम जान नहीं पाते कि हम ईश्वर के साथ हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये मन का आवरण जो है वो अज्ञान का आवरण बन जाता है। देयर इज ए लेयर, वी डोंट नो एनीथिंग। और इसलिए जब सोकर उठते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बड़े आनंद में था। हमेशा सोना चाहते हैं। खाने पीने में मजा जो आता है उससे अधिक मजा होता है गहरी नींद में। दैट्स व्हाई, इसलिए हम सभी जो है वो अच्छी नींद लेना चाहते हैं। क्यों? कि हम उस समय भगवान के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन वहां पर अज्ञान का एक आवरण होता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता, इसलिए कोई लाभ नहीं होता। फिर उठते हैं, थोड़ा कहा बड़ा अच्छी नींद आई थी, बड़ा सुख से सोया था मैं, और इसलिए सब सुख बाद में सुख चाहते हैं। वही सुख कभी न कभी रोज मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि साधना के बिना यह अज्ञान बना रहता है और हम बार बार वापस उसी स्तर पर आ जाते। तो उस समय भगवान के साथ एक साथ होने के कारण हमको सबसे अधिक सुख होता है, लेकिन अज्ञान बने रहने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। महाराज जी, चंदन, could you listen? Yes, I can very clearly. Yes, महाराज. Yes, महाराज सुन रहे हो ना? हाँ महाराज. ओके, ठीक है। अच्छा महाराज, सवाल ये है कि यदि अज्ञानता दूर, ठीक है ये महाराज, ये अज्ञानता दूर करने के लिए ही हमें जागृत अवस्था में रहना आवश्यक है। आवश्यक है, साधना आवश्यक है जी। मेरा जागृत अवस्था में भी अगर फिजिकल लेवल पे, भौतिक लेवल पे रहेंगे तो अज्ञान बना रहेगा जी। और इस रात में सो जाने पर क्या होता है, अज्ञान के कारण वो जो है वो साधना की दृष्टि से भी वो समय जो है वो नष्ट हो जाता है, लाभ नहीं होता उसका। जी जी। अच्छा, my last question is how to distinguish emotions from real feelings? अच्छा, ये देखो, ऐसा फिर से करो तो read the last 4 lines of the passage on page 12, 3rd paragraph. पढ़ो तो जरा। मैं पढ़ रहा हूँ महाराज। Yes. There are obstacles on the way to meditation like doubt, jealousy and restlessness of mind. Doubt is the greatest obstacle. It must be removed, and we must have complete faith. Mental restlessness on account of worldly matters also should be removed. Restlessness for the realization of God is indeed a blessed thing. It is, however, very rare. We may yes. Restlessness for God. Restlessness for God, उसको इमोशन से अलग बताया। समझे ना जी? तो ये रेस्टलेसनेस ऑफ गॉड जो है, ये जो चीज है वो लव ऑफ गॉड जो है वो दूसरे इमोशन से अलग है। अब दूसरा दृष्टांत मैं तुमको देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसको परीक्षा में पास होना है। वो पूरा लगा के डिसाइड कर लिया मुझे परीक्षा में पास होना है। फिर आगे गया तो मुझे एमडी करना है, एमबीबीएस करना है, और वो पूरा जोश लगा के उसमें कर रहा है। तो ये जो एमडी की उसकी इच्छा है और पढ़ाई की तरफ जो उसका झुकाव है, इसको क्या इमोशन बोलोगे या फीलिंग बोलोगे, क्या बोलोगे? ये है तो फीलिंग, हाँ, यस, लेकिन इमोशन नहीं है। नहीं, समझ गए? ये अंतर है दोनों का। जी जी जी, अब समझ में आ गया? यस महाराज जी, महाराज। हाँ, तो इमोशन जो है ये छोटा छोटा ऊपर का उच्छ्वास है, आंख में आंसू आ गए, कोई आया तो बड़ा गरीब है, अरे एक पैसा दे दिया, खत्म हो गया।
लेकिन जो महापुरुष है स्वामी विवेकानंद, वो रोते थे, कभी कभी रोते भी थे, लेकिन उनके मन में इतनी बड़ी इच्छा थी कि संसार के लोगों का कल्याण हो, इतना अनुभव करते थे उनके लिए। वो इमोशन नहीं था, वो फीलिंग थी, तीव्र फीलिंग। ठीक है, प्रश्न हो गया? बिल्कुल हो गया, प्रणाम महाराज, सब सवाल हो गए। अच्छा, और कोई? बस महाराज जी, यही सवाल। अच्छा, सुबीर मजुमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर? सुन पा रहा हूँ। और मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ महाराज जी। यस, आई कैन हियर। कैन यू हियर मी? यस महाराज जी, आई कैन हियर यू। बोलो। यस, ओके। महाराज, पहला सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। दिलीप भाई का लास्ट सवाल मेरा पहला। ठीक है, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन था महाराज जी, व्हाई डज evil deeds of past and present life lead to despondency in our spiritual life? Yes. क्या कहा है कि why? The evil deeds of past and present life lead to despondency in our spiritual life. तो ये तो अच्छा ही है। आपको बुरा लगना चाहिए कि अरे मैंने बुरा काम किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। ये है अरे न साधु कुर्वम असाधु किम अवम कुर्वम, ये उपनिषद में आता है, तैत्रीय उपनिषद में है कि किम असाधु कुर्वम, मैंने बुरा काम क्यों किया, किम मैंने साधु काम क्यों नहीं किया। ये जो है, जो सच्चा व्यक्ति है उसके मन में आनी चाहिए बात, उसमें क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन ये इसको अनुशोचना बोला, डिस्पोंडेंसी बोला, लेकिन डिस्पोंडेंसी नहीं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अनुशोचना, जिसे कहते हैं ना कि रिपेंटेंस। अब आगे से मैं नहीं करूंगा। नहीं तो हाँ, प्रश्न क्या है? मेरा सवाल था कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं पास्ट में, पिछले लाइफ में, उसका असर प्रेजेंट लाइफ में डिस्पोंडेंसी बन के क्यों आता है? ये कैसे बताया आपने कि पिछले लाइफ का है ये? That is what is written in the article, Maharaj. No, I don't understand that. There are so many bad things happen in our life, and all that are because of the past deeds. तो पूर्व जन्म के बहुत सारे कारण के कारण हमको ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान नहीं हो पाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब पुराने काम होता होगा, उससे क्या लेना देना? अच्छा। तो बहुत सारी चीजें होती है पुराने जब पूर्व जन्म के कारण। तो हाँ, उसके रीजनिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं। Why do you want to go into that? ठीक है। महाराज, तीसरा सवाल है, हाउ टू फाइंड आउट आवर ट्रू नेचर ऑफ माइंड, as ego always indulges in self deceit, so much so that our mind does not want to admit that we are egotistical. तो उसके लिए तो माँ का उपाय है। माँ कहती है दोष देखो अपने, ठीक है? अरे हमें अपने दोष देखना चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरों के गुण देखो, अपने दोष देखो। माँ स्वयं कहती थी, बाबा निजे दोष देख पे, अन्य दोष देख पे ना, बोलते हैं कि ना, माँ ने बोला है कि नहीं? तो अगर हम अपने खुद के दोष देखेंगे तो हमको अहंकार कम होगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो अपने एक कहानी है, एक शिष्य को गुरु ने कहा कि तुम, वो बड़ा अच्छा शिष्य था, बिल्कुल निरहंकार था, उसमें उसको कहा था कि तुमसे बुरी चीज कोई खोज के लाओ। जिसको भी देखता वो तो पत्थर देखता तो क्या उसमें भी मुझसे ज्यादा शक्ति है। और उसके बाद में उसने विष्ठा को छूने के लिए गया तो विष्ठा बोली मत छुओ, तुमने खाया मुझे इसलिए मैं पहले रसगुल्ला थी, विष्ठा हो गई तुम्हारे कारण से ही। तो वो उदास होकर चला आया, गुरु के पास ने कहा कि मेरे को तो मेरे से बुरी चीज कोई नहीं दिखी। तो यह स्वयं के दोष देखने का अगर अभ्यास हो जावे तो फिर अहंकार सिर नहीं उठाएगा। हाँ। और ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हैं कि जिसमें भगवान ऐसे जो साधक हैं, जैसे मैंने ये कहा, वो सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की, वो क्या करते थे, वो मैंने बताया था, पिछली बार भी बताया था कि अगर तुम सब लोग जाओ
और कोई तुमको गाली देवे, कहे कि तुम बदमाश हो, तुम संत नहीं हो, मारे भी, और तुम समझो कि जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, इस प्रकार से अपना अहंकार का नाश करना, ये समस्त साधनाओं में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो तुमने जो कहा है कि अहंकार को दूर करने का क्या उपाय है, फर्स्ट है कुछ के खुद के दोष देखो, दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। दोष क्यों देखते हो, अहंकार को क्यों देखते हो, भगवान का चिंतन करो। ये तो अगर सेकंड अगले क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा। तो मतलब ये है कि अहंकार नाश करने की जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। ओके महाराज, हम अपना नेचर ऑफ माइंड को जानने के लिए भी अपना दोष देखना चाहिए, टू नो आवर नेचर ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड तो ऑलवेज चलता है ईगो के द्वारा, तो अपना दोष देखेंगे तभी अपने माइंड के नेचर को पढ़ पाएंगे। मैंने यही तो कहा है उसको, यही तो कहा है। जी जी जी, कि गुरु जो है वो दोष दिखवाते हैं, ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि उसके अहंकार को जम के डंडा पड़े। तो दिस इज स्वयं को दोष देखना अहंकार को कम करने का बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। महाराज, अगला सवाल करूं? हाँ। हाउ टू कीप आवर माइंड्स ऑलवेज इन कम्युनियन विद गॉड? इन अदर वर्ड्स, how do we maintain a God-centered mind throughout the day? वो प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, सदा सोचो कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। फिर दूसरा है लॉकेट लगा लिया, चित्र रख लिया, सारे कमरे में चित्र रखा, आप भजन स्तोत्र कंटिन्यूसली करते रहो। मैं जो हूँ, मैं तो कई बहुत सारे स्तोत्र हैं, तो मेरे कमरे से निकलते ही मेरा ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ स्तोत्र मेरे मुंह में आता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हैबिट हो गई है। अपने यहाँ से मैं मंदिर में जा रहा हूँ या किचन में जा रहा हूँ तो स्तोत्र चालू हो गया। ये करो, और कमरे को अपना फोटो से सजा लो, जहाँ कहीं भी जाए मन तो भगवान पे ही जाएगा। तो चित्र के कारण के द्वारा, जप के द्वारा, भजन स्तोत्र के द्वारा, लॉकेट के द्वारा, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है वो जब चलते फिरते हैं तो भगवान से मन ही मन थोड़ी मानो बात करना, सोचना कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। ये सारे टेक्निक है, बिना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्यथा आधा घंटा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ध्यान जप करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सारा जीवन हमें कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। जी महाराज जी, हमें हर चीज को गॉड से एसोसिएट करना पड़ेगा। द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दैट, ऑफ एसोसिएटिंग एवरीथिंग विद गॉड। ठीक जी जी। अब ये जैसे है कवर, जैसे कहते हैं ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्कं सिद्धत्याम, ये भगवान के द्वारा सब कुछ आवृत है। ये करो, बहुत सारे आइडियाज हैं, उसको जीवन में डालने का प्रयत्न करो। ईशावास्यम यानी अपना जो पलंग है, बिस्तर है, तो उसमें ईश्वर की चादर पड़ी हुई है। सामने कोई व्यक्ति आया तो मानो उसके ऊपर एक ईश्वर की चादर मानो पड़ी हुई है। जो भी चीजें हैं सब कुछ मानो ईश्वर से भरी हुई हैं। ये तो बेसिक आइडिया है उपनिषद का। जी महाराज जी, फंडामेंटल आइडिया है ये। पहले खुद के भीतर भी तो खोजना पड़ेगा ना। कॉन्स्टेंटली हमारा मन हमेशा अंतर्मुखी होना चाहिए, हृदय में सोचना चाहिए कि भगवान है। ये करके देखो, बहुत सारे उपाय हैं। जी जी महाराज, कांस्टेंट प्रैक्टिस। जी महाराज, थैंक यू महाराज। शिवानी, अच्छा भाई शिवानी, हाँ शिवा करते तो अच्छा रहता। शिवानी कर रहे हैं। महाराज मेरा प्रश्न था हाँ, कैन वी गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू माइंड इन द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन और शुड कंसंट्रेट ऑन द गुरु एंड कंटिन्यू विद द जपा ओनली? देखो ऐसा है कि गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना जी, गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं दीक्षा के समय को, आपको एक पेपर देते हैं, उस पे करते हैं कि मुंह हाथ धो के बैठोगे, इस प्रकार से बैठोगे, भगवान का पहले नाम लोगे, प्रणाम करोगे, गुरु को प्रणाम करोगे, सबको प्रणाम करोगे, ऐसा सब दिया होता है ना। हाँ जी। तो वो इंस्ट्रक्शंस, गुरु के इंस्ट्रक्शंस डेफिनेट फॉलो करना चाहिए। ठीक है। उसमें कई जगह पे गुरु पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात भी कई जगह पे कहते हैं।
यतीश्वरानंद जी फॉर एग्जाम्पल उसको एम्फोसाइज करते थे। तो ये इंस्ट्रक्शंस, गुरु के इंस्ट्रक्शन चेंज ना करके पहले या बाद में पॉजिटिव एफर्मेशंस कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, यही तो ऐसे ही तो बोल रहे हो ना, तुम इसी को बोल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, इस प्रकार के जो एफर्मेशन है उसको डेफिनेटली किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज। बस यही क्वेश्चन था जी। अच्छा, सपना, सपना, प्रणाम महाराज। प्रणाम गुड महाराज। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गुड मॉर्निंग, प्रणाम नहीं, हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज ट्राई टू रेज योर माइंड टू द हायर चक्रास। Always try to raise your mind to the higher chakras. हायर चक्रा का मतलब है how to practice. हाउ टू डू इट। हाँ, हायर चक्र यानी क्या? 3 चक्र जो है ना, नाभि, गुदा और लिंग, इसमें तो मन में विषयों की चर्चा होती है, भोग की इच्छा होती है। अगर विषयों की चर्चा और भोग में पड़े रहोगे तो मन वहां उस लेवल पे रहेगा। हृदय पर आने पे भगवान का चिंतन चालू होता है, तो भगवान का चिंतन और शुभ का और निरंतर भगवान का चिंतन करते रहोगे तो गले में कंठ में आ जाएगा। और छठा लेवल तो बहुत ऊंचा है, उसकी बात छोड़ दो, हमें कंठ के और हृदय के लेवल पे मन को रखना है। और इसलिए है निरंतर भगवत चिंतन और शुभ कर्म बनाए रखना है। इस प्रकार से मन जो है वो निरंतर भगवान उच्च लेवल पे बना रहे। ओके, ठीक, ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन वी डू नॉट हैव worries, we create them. We brood over imaginary problems and create real problems. Do we face adverse situation or have conflict in the outer world because of our inner disturbances? You see, as a matter of fact, जो a person if your mind is peaceful, उसमें 2 बातें होंगी। एक तो यह है कि एक्सटर्नल सिचुएशन में या प्रॉब्लम उठी होगा तो उससे तुम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे। अच्छा, अच्छा। Even otherwise, your reaction to external situations will be peaceful. You will not get too much disturbed if you are basically peaceful inside. अच्छा। नहीं तो अगर रेस्टलेस हो गए, बेसिकली रेस्टलेस हो गए तो जरा सी बात बाहर हो जाएगी तो बड़े गड़बड़ा जाओगे तुम। यस, यस महाराज, यस। तो इसलिए पीसफुल होना बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब कम करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सचमुच यदि अगर आदमी व्यक्ति पीसफुल होवे तो एक्सटर्नल सिचुएशंस कर्म के कारण कुछ न कुछ तो होंगी बाबा। पुराने कर्म के कारण या जो कुछ न कुछ तो होंगी। लेकिन इवन अदरवाइज दे विल बी लेस इंटेंस, यू नो, दे विल बी लेस डिस्टर्ब एंड we will have less outer conflict also. मतलब रिएक्ट नहीं करेगा मन, आउटर कॉन्फ्लिक्ट में मन में रिएक्शन कम होगा। आउटर कॉन्फ्लिक्ट में 2 चीजें होती हैं। तो इफ आउटर सिचुएशन और अपना रिएक्शन, ये 2 चीजें हमेशा होती हैं। बट इफ आवर रिएक्शन वी कैन रिड्यूस then we will be less disturbed. Yes, yes. ठीक है? And third question is we cannot help thinking and cannot stop it even for a moment. Page number 13. So do the thoughts come up in the mind automatically? Okay, let it come. The mind continuously thoughts are coming. No, but they come automatically. Coming. Automatically they come. Automatically. Any type of thought. Yeah, automatically they come. Okay, okay. But we can modify their type. Okay, yeah. अगर हम continuously भगवत चिंतन करें अपनी तरफ से, और चिंतन करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, साधु संग करें, तो क्या होगा? साधु संग थॉट्स है, अच्छे थॉट्स आएंगे। यस, यस महाराज। अरे हम विषय का, संसार का चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं तो जबरदस्ती ऑटोमेटिकली भगवान का विचार आ जाएगा।
उससे अच्छा और क्या चाहिए? Wonderful. Yes. Let automatic thought comes and let automatic God thought comes. भगवान का चिंतन आने दो ना ऑटोमेटिकली, क्या नुकसान है? हाँ. Yes, महाराज. वो तो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं ना. अच्छा महाराज, can we modify our thoughts or vrittis? There is a confusion between thought waves. Don't make this difference. वृत्ति का मतलब ही तो क्या है? चित्त के ऊपर उठने वाली वृत्ति को ही बोलते, उसी को तो थॉट बोलते हैं. अच्छा. चित्त वृत्ति यानी क्या? हमारे मन पर उठ रहे विचार. That is our reaction. Is it our reaction? Vrittis? No. Oh no, reaction also are thoughts. Automatically arising ideas also are thought. Okay. No, why are you making that difference? No, I don't know. That's why I am asking. You will confuse yourself by making this sort of distinction. Yes. No, that you don't worry about this. I thought question also. Okay. हाँ, विचार उठ रहे हैं, विचारों को हम बदल सकते हैं कि जिससे अच्छे विचार उठें. और जब अच्छे विचार उठेंगे तो उसके लिए बिना प्रयत्न के आपके अच्छे विचार उठने लग जाएंगे. ठीक. तो स्वाध्याय करो, सत्संग करो, निरंतर भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न करो, तो उसके बाद में मन में उठ रहे विचार सब अच्छे विचार हो जाएंगे. Yes, महाराज. Yes. ठीक है. महाराज, लास्ट क्वेश्चन है. If we analyze our minds, we will find that almost all the time we think on egocentric lines. So here, does egocentric thinking or I consciousness actually mean that I become concerned only about me and my progress and lose? वो ठाकुर तो बोलते हैं अहंकार जाने का नहीं है. जिस प्रकार चित्त की वृत्तियां जाने की नहीं है, विचार जो मन में उठ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उठेंगे, ऑटोमेटिकली उठेंगे, उसको बदल सकते हो. अच्छा. उसी प्रकार से अहंकार जाने का नहीं है. उसको भगवान का बना दो. मैं भगवान की दास हूँ, मैं भगवान की कन्या हूँ, ठाकुर की कन्या हूँ. स्ट्रांगली सोचो अहंकार इसको. अब जैसे हमारा है तो हम जो भी करें तो हमको एक आइडिया डेफिनेटली है कि हम रामकृष्ण मिशन के हैं. हमारा ईगो तो चेंज हो गया ना. तो फिर दिस चेंज मॉडिफिकेशन ऑफ द ईगो हैज टू बी डन. ईगो विल रिमेन. अब मैं उसके बाद ये तो सोचूंगा ना, कहूंगा कि भाई आज की क्लास हुई थी, अच्छी क्लास हुई थी, मैंने क्वेश्चंस के उत्तर दिए, तो मैं तो आया ना. तो ठाकुर तो क्या कहते थे? ठाकुर तो उससे बचने के लिए कहते थे कि इसने उत्तर दिए हैं, मैंने नहीं बोलते थे, इसने उत्तर दिए थे. इसके पास नरेंद्र आया था. एखनकर. तो ठाकुर तो इतना करते थे, अब कर सको. वो इतना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. ठाकुर के लिए भले प्रैक्टिकल हो, क्योंकि वो संत थे, वो लोगों के पास आते थे. तुम अगर बैठने लग जाओगे कि इसने आज खाना बनाया, इसने मिर्च ज्यादा डाल दी, तो लोग हंसने लग जाएंगे तुम्हारी. जी. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ट्राई टू थिंक दैट यू आर द डॉटर ऑफ ठाकुर. ओके. ईगो. ठीक है. प्रणाम महाराज. ईगो के ऊपर इसमें इस आर्टिकल में भी है और कई बार क्वेश्चन भी किए गए हैं. ये ईगो की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है. इस बार हमने डिस्कशन भी किया था एक बार, इसके पहले भी. जी ये पहले भी एक आर्टिकल में था, ये डिस्कस किया था. चंदन टुंडू. यस महाराज. प्रणाम महाराज. आप बोलो महाराज. Overcoming distractions during meditation is very difficult. Lots of energy is wasted in suppressing them. But at times when there is a problem in life, like someone is sick and I am praying for his recovery, it is easier to concentrate on his compassionate nature, and I find that meditation is better. It's a personal experience, Maharaj. Achha. In other words, it is easier to concentrate on his attributes, which gives us boon, etc., rather than meditating on some ideas like purity and things like that. Is this natural? नहीं. Point is, do you mean to say, हम तो पहले यह प्रश्न उठाएंगे, do you mean to say
कि मेरे जीवन में जरा प्रॉब्लम्स बार बार आ गए तो जिससे मैं भगवान को ज्यादा याद कर सकूं। वी वांट दिस। पहले जो तुमने इंट्रोडक्शन में लिखा ना, हाँ महाराज, कि जब किसी के ऊपर कष्ट आया तो मैं भगवान को ज्यादा याद किया है। yes, तो आप क्या चाहते हो कि बाप के ऊपर कष्ट ज्यादा आवे जो भगवान को ज्यादा याद करोगे? नहीं महाराज, नॉट दैट वे, बट नहीं, ऐसा है। हाँ महाराज, ओके, उसमें क्या नुकसान है? भगवान कंपैशनेट है, आनंदमय है, दयालु है, उसको सोचने हमेशा ही तो ऐसा सोचा ही करते हैं। हाँ वही नुकसान, हमेशा ही सोचते हैं। वो तो स्वामी विवेकानंद जैसे वीर लोग होते हैं जो माँ का डिस्ट्रक्टिव रूप का उसका भी ध्यान करते हैं, लेकिन हम तो माँ के करुणामय रूप का ही ध्यान करेंगे ना। यस महाराज, वो तो बड़ा भय करा है एक हाथ में, उसी को ही देखते हैं हम, खटको को नहीं देखते हैं। वो नरमुंड भी है माँ के ऊपर, लेकिन हमको फिर माँ जो है ना वो बढ़िया खाना खिलाने वाली माँ लगती है, गोद में लेके प्रेम करने वाली माँ लगती है। तो क्या नुकसान है उसमें? करो। ओके महाराज, there is no difficulty about it. Okay. Next Maharaj, now this sentence is confusing. The progress is not from matter to spirit, but from spirit to spirit. Our mind is immersed in material world and we try to give it a spiritual direction through japa and meditation. Thus, we find the journey is from matter to spirit. We are always trying to go over the worldly existence and thinking about God. Once we can overcome the body consciousness, are we not already in the spiritual plane? एक बार देहात्म में चला गया तो फिर तो रहा ही नहीं ये चीज, तो फिर जर्नी कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस कैसे हुआ? तो कॉन्शियसनेस इसलिए होती, कॉन्शियसनेस यानी स्पिरिट, यानी हम भगवान मन में चिंतन करते हैं तो मन में एक प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं। 10-15 साल में हमारा चिंतन बदल जाता है, हम भगवान को दूसरे प्रकार से जानने लग जाते हैं। ये जो प्रोग्रेस हुई है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो प्रोग्रेस हुई है, तो मेरे शरीर से क्या लेना देना उसको? मेरा तो भगवान के संबंध में जो चिंतन है वो परिवर्तन हुआ है, मेरे भगवान के प्रति जो ध्यान था वो गहरा हुआ है। ये स्पिरिचुअल लेवल पे ही तो हुआ है, फ्रॉम स्पिरिट से स्पिरिट ही तो हुआ है। मैं एक प्रकार से भगवान का चिंतन करता था 5 साल पहले, 5 साल बाद में वो दूसरे प्रकार से चिंतन कर रहा हूँ। दैट मीन्स माय प्रोग्रेस इज फ्रॉम स्पिरिट टू स्पिरिट। सो दैट मीन्स ये जो पहले बोल रहे हैं, थिंकिंग ऑफ गॉड इन वन पर्टिकुलर वे, नाउ आई एम थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। हाँ, so that means when I am meditating, I am thinking of God. But जैसे पहले बोला है, as long as we have the sense of identification with our bodies, we should keep up the concept of a divine form. So जो हमारा, you see, as long as I consider myself a body, yes, I will also consider God as a body. Yes, Maharaj. जो ठाकुर स्वामी जी तो ये कहते हैं कि एक भैंस अगर भगवान का चिंतन करेगी तो एक बड़े भैंस की चिंतन करेगी। yes, तो भगवान का रूप तो है नहीं, हम अपने भगवान का बना लिया है, राम बना लिया, कृष्ण बना लिया है। सिर्फ हमने ये किया है कि हमारे 2 हाथ थे, हमने उनके 4 हाथ कर दिए। ठीक महाराज। तो यह फिजिकल लेवल पे ही है। बट a state must come when we go beyond that and start thinking of God as spirit. And so that is the idea. And that's thinking of God as spirit, even that evolves into finer and finer. Yes, definitely. Yes, definitely. Okay. That's how the journey. Okay. Yes, Maharaj. Itu Ghosh. Maharaj, can I ask a question regarding this last question? Yes. Is it Jnana Mishra Bhakti? When we go from the देखो
ठाकुर से किसी ने पूछा, बात हुई है, कहीं वचनामृत में ही है या कहीं पे आया है कि मैं तुम्हें की चाहो, एक तो किसी से पूछा उन्होंने, ज्ञान ना भक्ति, देखिए हमें शुद्ध भक्ति चाहिए। ठाकुर बोलते हैं कि बिना जाने उससे भक्ति प्रेम कैसे होगा। तो ज्ञान भी होना चाहिए, तब भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों हाथ चाहिए, है ना वचनामृत में? हाँ हाँ है। वचनामृत में है। पलटू से कहा या किससे पूछा था? महाराज मास्टर महाशय पूछते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है क्या? ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ बोल, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ठीक है। नहीं, लेकिन वो ठाकुर दूसरा जगह कहते हैं, किसी को तू क्या चाहता है, ज्ञान चाहता है, भक्ति चाहता है, कि मैं भक्ति चाहता हूँ। ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं, के बिना तो कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन, कैसे प्रेम करेगा? दोनों होता है, और का डिफरेंस जो होता है। हाँ, और ज्ञान मिश्रा भक्ति कहो इसको, तो उसमें कितना ज्ञान है? 5% ज्ञान है और 20% ज्ञान है, 50% ज्ञान है। ठाकुर के बारे में तुम जानते नहीं हो, ऐसा तो होगा नहीं है। श्री राम कृष्ण की जीवनी पढ़े हैं, वचनामृत पढ़े हैं, तो बहुत सारा ज्ञान हुआ है तो ठाकुर के संबंध में। हाँ जी जी। और तब उसके द्वारा हम भगवान को प्यार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान मिश्रा भक्ति हो सकती है। और दूसरा ज्ञान मित्र भक्ति यानी क्या है कि मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वर के द्वारा हम अपने शरीर को पृथक करके हम आत्मा के स्तर पे आएंगे, ये भी ज्ञान की प्रोसेस है। तो दोनों होना चाहिए। अच्छा, ये तो ठीक ठीक जी, ये तो है, ये तो जी। हाँ जी, बोलिए। मेरा पहला आइए raise a spiritual current on conscious plane. So how to raise the current and how to know it? What do you mean by conscious spiritual current? प्रवाह, एक मेंटल माइंड में जैसे विषय का प्रवाह होता है, संसार का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से मन में स्पिरिचुअल प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह यानी फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स। अब ये कैसे करोगे? सब समझते हैं। सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे, भगवान का भजन करोगे, नाम करोगे, उनका निरंतर भगवान का चिंतन करने से मन में कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस प्लेन पर अगर हम मन के लेवल पे करेंगे तो स्पिरिचुअल थॉट्स उठेंगे। सीधी बात है, इट्स वेरी सिंपल। कॉन्शियस लेवल पे हम कॉन्शियस लेवल पे ही तो करेंगे। अभी ये कर रहे हैं तो ये मन में तुम्हारे कॉन्शियस लेवल पे स्पिरिचुअल थॉट्स उठ रहे हैं ये इस रिट्रीट में जी। और तुम स्वाध्याय करोगे तो रिट्रीट में उठेंगे। अब लीला प्रसंग पढ़ोगे तो होगा, भजन करोगे तो होगा। मन में जो है वो कॉन्शियस लेवल पे ये सब उठेंगे जी। ओके जी। टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो और संसार के विषय के चिंतन बिल्कुल नहीं करना। वहां पे जो है वो विषयी थॉट्स हो जाएंगे, नॉन स्पिरिचुअल मटीरियल करंट हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रांसम्यूट सैंड्स इनटू सॉल्ट और टू इंक्रीज सॉल्ट? हाँ, ये वो किसमें बोला है? ये जो है सतीश्वरानंद जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे नमक को पानी में डाले तो घुल जाएगा, लेकिन हमारे हम में जो है वो नमक इतना, सॉल्ट इतना ज्यादा, नमक ये अपने सैंड इतनी ज्यादा रहती है कि हम घुलते नहीं हैं। यानी सांसारिक विषय हमारे इतने ज्यादा हैं। वही करो जो पहले का प्रश्न था, वही प्रश्न इस प्रकार का यही है। वो विषय चिंतन, विषय चिंतन ये तो हुआ सैंड, और सत्संग जो है वो हुआ सॉल्ट। अच्छा, तो इस प्रकार से उसको बढ़ाते जाओ। ठाकुर भी कहते हैं दूसरा थोड़ा सा भिन्न एग्जाम्पल ठाकुर देते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं वो जिनमें पानी, दूध के साथ इतना सारा पानी मिला हुआ होता है कि फूंक मारते 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 मेरा मुश्किल हो जाती है ना। ठाकुर का है ना जी, है। ठाकुर बोलते हैं कि इतना पानी मिला हुआ है दूध के साथ में कि उसको कैसे करूंगा मैं।
फूंक मारते मारते कष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अरे पहले ये नरेंद्र के पास में, केदार के पास में, इनके पास में हो के मेरे पास आवे तो जल्दी जल्दी हो जाए। तो वही है कि पहले जो है वह दोनों सॉल्ट सैंड जो है वो बहुत ज्यादा है, विषयी चिंतन बहुत ज्यादा है, उसको दूर करना है तो सॉल्ट होना चाहिए, और सॉल्ट है ना भगवत चिंतन। ठीक है जी। और थर्ड क्वेश्चन है, इट इज बेटर नॉट टू अटेम्प्ट ए फ्रंटल अटैक ऑन बैड थॉट्स एंड लो मूड्स। व्हाट इज मेंट बाय दिस फ्रंटल अटैक? फ्रंटल अटैक, अगर आपके मन में भोग की इच्छा आई तो उसको, भोग को डायरेक्टली रोकने का प्रयत्न मत करो। आपने पेपर में पढ़ा, कुछ आया, एक टीवी बढ़िया है वो लेना चाहिए, ये सीरियल, रोकने की कोशिश मत करो। उसके बदले ये दूसरा सत्संग चालू कर दो, दूसरा स्वाध्याय चालू कर दो, उस तरफ मन को लगाओ, तो ये जो चीजें हैं ये कम हो जाएगी। तो वो डायरेक्टली काम क्रोध को डायरेक्टली नहीं फेस करना। अच्छा, काम क्रोध लोभ इत्यादि को डोंट ट्राई टू डू इट डायरेक्टली। ऐसा करने से उसके बदले आप साधु संग करो, आश्रम में जाके रह लो 1-2 घंटा, दूसरा विचार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर किताब लेके ट्रांसलेशन करने लग जाओ। तो आपने काम की बात नहीं की, क्रोध को रोकने की कोशिश नहीं की, हमने दूसरा काम कर लिया, डायरेक्टली उनको फेस नहीं किया, दूसरा काम किया, वो अपने आप कम हो जाते हैं। याद रखो, मैं साधना की बात कर रहा हूँ, इतने वर्ष साधना के बाद हमने डायरेक्टली काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। हम लोग तो भगवत चिंतन करते रहते थे, साधु लोगों की सेवा करते रहते थे, स्वाध्याय पढ़ करते थे, साधुओं के पास जाके शास्त्र पढ़ के सुनाया करते थे, लोगों से अपने भक्तों मित्रों के साथ मिलकर, और वही ऐसे स्वाध्याय करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, ऐसा सब किया, और ये काम क्रोध लोभ मोह अपने आप कम हो गए। नो फ्रंटल अटैक। समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया। और फोर्थ क्वेश्चन है, to create a void in the mind should be avoided, but I found that sometimes this void gives rise to the You see, we have to be very careful. जी, अगर तुम वॉइड को मन में कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे रहो, तो मन को शांति तो मिलेगी, लेकिन ये वॉइड होने पर मन में बुरे विचार जल्दी आ जाएंगे। Void in your mind, the chances of evil thoughts arising in it is much greater. Remember. So you may have void, doesn't matter, but be very careful. अगर वॉइड करना हो तो आंखें खोल के ठाकुर का फोटो को देखो, ध्यान नहीं करना। आंखें में ध्यान करने में आंखें बंद करते हैं ना, आंखें खोल कर ठाकुर के फोटो को केवल देखते रहो 5-10 मिनट तक। तो सोचना नहीं है तुमको, केवल देखते रहना है। जी, दैट वॉइड इज गुड। अच्छा, ठीक है। वॉइड विल बी क्रिएटेड, a sort of void, isn't it? हाँ, जी जी, मेरा you are not thinking of anything, you are seeing a photo. जी, the void is created, but that void is not bad. जी जी, समझ गए जी, मेरा प्रश्न हो गया। वो क्रिएट करो, उसके बाद आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी आपको। हाँ, ओके जी, हाँ, मेरा हो गया। अच्छा, इसके बाद में अशोक रहेगा। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ भाई, ठीक है, अशोक रहेगा। जी प्रणाम स्वामी जी। संजय, अशोक रहेगा को अनम्यूट। हाँ भाई जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई,
पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही है? नहीं, आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है। आवाज आ रही है महाराज? हाँ आ रही है, आ रही है महाराज। वैसे तो काफी मेरे प्रश्न जो संदेह थे इससे आज की डिस्कशन से क्लियर हो गए। और जब से मैं आपको सुनने लगा हूँ काफी डिग्री ऑफ पीस इन माइंड हैज इंक्रीज टू मच एक्सटेंट। ओके। और काफी इम्प्रूवमेंट है। But still, my question is that most of the time I am satisfied with the level of japa and meditation, and I feel happy after the practice. But sometimes due to some unwanted comments, किसी ने कुछ कह दिया या कोई unhappy incident हुआ, तो mind get disturbed and I do not get the same level of peace and happiness during and after japa and meditation. तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमारा? अच्छा, मेरा ये कहना प्रश्न ये है, इसके आफ्टर मेडिटेशन जो है वो पीस ऑफ माइंड के लिए करते हैं। दैट इज नॉट द पर्पस, मेन पर्पस ऑफ जप एंड मेडिटेशन। जी। जप मेडिटेशन का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। जी। पतंजलि योग सूत्र में है ना। जी जी जी। जप भावना ये उपाय है। हाँ जी। ध्यान के द्वारा भी चित्त वृत्ति निरोध होता है। और अगर आप केवल थोड़ी सी शांति के लिए जप करेंगे तो उसका अधिकांश लाभ जो नहीं मिल रहा है। जी। और मन लगा के इंटेंसली जप को कीजिए एकाग्र मन से। और मेरा आनंद की खोज मेरी किताब में आपको डिटेल मिल जाएगा, जप कैसे करना, ध्यान कैसे करना, बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। जी महाराज। वो उस प्रकार से आप अपने जप और मेडिटेशन की क्वालिटी बढ़ाइए, पहली बात। और दूसरा, उसका लक्ष्य जो है उसको बिल्कुल डेफिनेटली चेंज कर दिए। ये तो थोड़ी बहुत शांति मिल गई और आप उससे संतुष्ट हो गए। जी। और किसी दिन शांति नहीं मिले तो आप जरा संतुष्ट हो गए, ये क्या? दिस इज नथिंग। ये तो लंबे समय की प्रोसेस है। किसी दिन शांति मिलेगी, किसी दिन अशांति मिलेगी, किसी दिन जप अच्छा होगा, किसी दिन बुरा जप होगा। इसकी आप चिंता क्यों करते हैं? बट इंटेंसिफाई योर मेडिटेशन एंड जप, चेंज द क्वालिटी ऑफ जप। उसका आदर्श हो जाए, लक्ष्य को भी उसको भी चेंज। जी जी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी। सेकंड क्वेश्चन महाराज की ये आई अंडरस्टैंड अबाउट द्वैत एंड अद्वैत, जैसे क्लियर है कि, लेकिन व्हाट इज विशिष्टाद्वैत, वो थोड़ा क्लैरिफाई करना है। क्वेश्चन इसमें नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। ये विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत यानी ये है कि जैसे मेरा शरीर है, मेरा दाहिना हाथ अलग है, मेरा बायां हाथ अलग है, मेरा सिर अलग है, ये तो हो गया द्वैत। जी। और अद्वैत में मैंने एक साथ मान लिया। जी। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं मेरा शरीर जो है वो हाथ पैर सिर विशिष्ट शरीर है। वो मानते हैं कि यह जो सारा जगत है तो इसमें जीव भी है, जगत भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, ये सब विशिष्ट, इन सब से जुड़ा हुआ जो जगत है, ये भगवान है, ये सब जुड़े हुए हैं। ये पर्वत जो है वो भगवान के शरीर जैसे है, जैसे मेरा सिर है, मेरा अंग है, इसलिए तो इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत में कहते हैं कि यह सारा का सारा, ये सब जितनी चीजें हैं ये सब मिथ्या है, केवल एक चैतन्य सत्ता है। और द्वैत में कहते हैं अलग अलग सब चीजों को, ये एक जीव अलग है, मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं ये सब एक है, एक के अंग है। ओके जी। तो ये विभिन्न, हाँ ठीक है, शुक्रिया। रीता विश्वास। प्रणाम स्वामी जी। ये स्वामी जी my question is what is the simple beginner step to analyze the nature of the mind? And the related question is yes Swami ji. Yes. Related question. What to do if on analyzing yes mind, yes related question. Related question is what to do
if on analyzing mind, I find it is dull, sleepy, and some tamasic, and has tamasic quality and is disorganized. Sometimes उठ के जरा काम करो, बढ़िया खाना बनाओ, ठाकुर की पूजा करो, ठाकुर के फोटो को अच्छी तरह साफ करो, बी एक्टिव विथ रिलीजियस एक्टिविटी, तब उससे तमोगुण क्या होगा, एनर्जिया दूर। Yes. When if you become तमोगुणी, you have to increase the रजोगुण, और रजो करने की बहुत सारे, इसीलिए लोगों को बोलते हैं ध्यान जब ज्यादा नहीं करना, पूजा करो, भगवान के फोटो को साफ करो, बराबर रेगुलरली पूजा सुबह शाम करो, और फिर थोड़ा बहुत ध्यान कर लो, नहीं तो ध्यान में तुम सो जाओगे। Yes sir, yes, इसलिए, और आप एनालिसिस तो बढ़िया कर ही रहे हो, वो क्यों एनालिसिस की इतनी बात करते हो? No, because analyzing the nature of the mind is clear actually. अच्छा ठीक है, ओके। सतीश प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। सतीश बोल रहा हूँ। भाई बोलो महाराज, जो वो आर्टिकल बोलो मैं सुन रहा हूँ। जी महाराज, बोलो। It is not related to the article, it is a philosophical questions. हाँ ठीक है। वो पिछली बार तुमने किया था, उसी को बोल रहे हो। तो वो कहते हो, तुम्हारा एक प्रश्न है कि जो पुरुष विशेष की बात है ना। हाँ जी महाराज, पुरुष विशेष की बात है ना। हाँ जी महाराज। तो पढ़ डाला, लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग तो दोनों समझ रहे हैं, दूसरों को समझने के लिए। ऐसा है कि पुरुष विशेष में वहां पर किसी व्यक्ति विशेष का या एक देहधारी व्यक्ति की तो बात नहीं की गई है, यही बात है ना तुम्हारा प्रश्न? यही है। हाँ जी। हाँ बोलो, फिर से पढ़ो उसको। महाराज, जो अपना प्रश्न पढ़ो। Whenever we meditate on Sri Ramakrishna, no doubt we start with his picture in the mind, but behind the picture is the idea, and the idea only. That is Ishvara, Satchitanand, Vyapak Brahma Swarup. ठीक है। Seeing the picture, it is the idea gathered from our long Chintan reading that is conjured up in the mind. It is not the picture, but the idea of Ishvara that is behind the picture, which calms our mind and gives us instant peace and bliss. However, the ideas or gunas of Purusha Vishesh leads to an unspecified individual Atma. Atma is out of various Atmas, one of the individual Atmas. Hence, it cannot be, it is not universal Atma. It is not व्यापक or residing in the hearts of everybody. जैसे हम भगवान की चिंतन करते हैं कि वो हमारे हृदय में बैठे हैं और वो पार ब्रह्म है, ओमनिशेंट है, ओमनीपोटेंट है। ठीक है। हाँ। उस तरह से हम उसका जो पुरुष विशेष का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष विशेष जो है ना तो वो अवतार हैं और ना ही उनको अद्वैत के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ा जा सकता। ये मेरा आइडिया था। तो माय क्वेश्चन इज कि इट इज बेटर टू मेडिटेट ऑन अवतार और निर्गुण ब्रह्म देन तुमको जो अच्छा लगे करो ना। सुनो, तुमको अच्छा लगता है श्री रामकृष्ण अवतार को ध्यान करने का तो करो, उसमें क्या दिक्कत है? किसी ने मना नहीं किया तुमको। लेकिन मुसलमानों में तो हजरत मोहम्मद का भी फोटो नहीं है। उनको मालूम है नहीं हजरत मोहम्मद कैसे थे, कैसे करेंगे ध्यान उन पर? जी महाराज। उनके यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई फोटो वोटो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और ध्यान करते हैं, इतने लोग साधना करते हैं, संत हो गए बड़े बड़े, कैसे हुआ? और जो अद्वैत वेदांती है वो रूप को नहीं लेते, वो चैतन्य आत्मा का चिंतन करते हैं। तो फिर पातंजल योग सूत्र में भी सुनो, पातंजल योग सूत्र में भी किसी ईश्वर या किसी अवतार की बात नहीं कही गई है, और पूरी सिस्टम है वो। उसमें ईश्वर को पुरुष विशेष नहीं, ईश्वर को पुरुष विशेष कहा।
कुछ गुण बता दिए उसके लिए, पुरुष विशेष। ईश्वर, पर ईश्वर जो है वो कोई हाथ पैर वाला चतुर्भुज रूप ईश्वर नहीं है, वहां उसकी परिभाषा दी गई है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष है, गुण विशेष वाला ईश्वर है वो। तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? तो जो कोई व्यक्ति करे, और वो ईश्वर जो है वो अलग है, वो आत्मा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है। तो इस सबको मिलाया हुआ ईश्वर अद्वैत वेदांत का ईश्वर नहीं है, वहां पे अद्वैत वेदांत का चैतन्य भी नहीं है। और आपको आपत्ति क्यों है इसके ऊपर? आपको आपत्ति क्यों? आप मत कीजिए उसको, आप अपने इष्ट को, ठाकुर को ध्यान कीजिए। बट दैट इज अ फुल, डेफिनेटली फुल ग्रोन अप प्रैक्टिस। जी महाराज। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो अवतार को नहीं मानता, जो रूप को नहीं मानते, ऐसे असंख्य लोग हैं। लीला चिंतन भी नहीं। अरे भाई मोहब्बत, हजरत, इस्लाम इतना बड़ा इस्लाम है, इतना फैल रहा है, 5 नमाज करते हैं, लेकिन कोई रूप नहीं है। फिर आपको आपत्ति है, आप मत लीजिए, ये तो प्योरली थ्योरेटिकल, आपको नहीं लगता मत करेगा, आपको नहीं लगता है तो मत कीजिए, लेकिन जैसा वो लोग हैं वो उसे करेंगे उसको। और महाराज मोहम्मदन जो है वो जो करते कल्पना करते हैं, वो ईश्वर इज वन, यूनिवर्सल ईश्वर है, सभी का है। लेकिन जहाँ जो संख्य योग में है इंडिविजुअल है, वन ऑफ द इंडिविजुअल्स है। ये असंख्य आत्मा है, असंख्य आत्मा है, ईश्वर भिन्न है। तो जितने व्यक्ति हैं उतने आइडियाज हैं ईश्वर के। जी महाराज, वो तो है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तो मत तो पथ, जो तो मत तो पथ, जितने व्यक्ति हैं उतने मत के संबंध में। आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? महाराज शायद आपका एक एक्स्ट्रा स्पीकर ऑन है महाराज जी, आपका शायद फोन का स्पीकर भी ऑन होगा इसलिए। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक ही जैसा है वैसा ही है, बस कुछ नहीं, एक ही फोन है। अच्छा अच्छा, ईयरफोन लगा हुआ जैसा आप लोगों का है उसी प्रकार का है। ओके ओके महाराज। जी महाराज, हो गया? हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन महाराज, जो आपने पिछली बार बताया था जो मन की मृत्यु हो जाती है, कि मन का एग्जिस्टेंस नहीं रहता आफ्टर समाधि में, तो श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से प्योर माइंड एंड आत्मा आर द सेम थिंग। प्योर माइंड एंड आत्मा आर द सेम थिंग। Thus samadhi mind becomes pure, that is one with मतलब ये है, but it can take form whenever required. Question क्या है? It takes modification for आत्मा। तो उसकी पूर्ण मृत्यु तो नहीं कह सकते, कि वो कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्योर हो जाता है, माइंड प्योर हो जाता है, आत्मा के साथ एक हो जाता है, और फिर से मॉडिफिकेशन हो सकती है उसकी। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा ये था कि मन की क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन, मन की मृत्यु नहीं, शुद्ध मन और शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक है, ये ठाकुर का कहना है। ये कहना मतलब जब शुद्ध मन हो जाता है तो मन नहीं रहता वहां पर, मन जैसी चीज नहीं रहती। शुद्ध होकर आत्मा के साथ समाधि में मन जैसी चीज नहीं रहती, केवल परमात्मा रहता है। हाँ बस, ठीक है। कैन इट टेक फॉर्म अगेन? देवाशीष जी महाराज, हो गया। सतीश तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन महाराज, वेदर इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा क्वेश्चन महाराज, जब तक समाधि, हाँ तीसरा क्वेश्चन महाराज, whether introspection also leads to sattva guna along with japa and meditation. बिना सत्व गुण के इंट्रोस्पेक्शन हो नहीं सकता।
ठीक ठीक सत्वगुण के बिना इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता। और वाइस वर्सा भी है। क्या? इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उससे मन शुद्ध होता है, सत्व होता है। दोनों एक ही चीज समझ लीजिए। उसको आप ऐसा कैसे कह दो क्या तुम जैसा भी चाहो करो, बिना सत्व गुण के इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता। जी महाराज, जी महाराज, जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। देवाशीष, देवाशीष हो? देवाशीष, अच्छा बाला अनम्यूट कर लीजिए। महाराज जी, देवाशीष, हाँ यस यस, महाराज जी। अच्छा तुम्हारे जो क्वेश्चंस है उसमें सब माइंड के ऊपर है, उसको तुम ऑर्गेनाइज करके बोलो। हाँ महाराज जी, पहले भी क्वेश्चन किए बाद में किए हैं, सबको मिला के बोलो। अच्छा, सबको मिला के बोल रहा हूँ कि I have heard lot of things now. Things are clear now. If our soul is divine and the divine light is illuminating our buddhi and mind, then how mind can think evil, harmful thoughts? If the entire mind is illuminating the soul and it is dependent on the soul, how can mind is more powerful than the soul? Because it is it not the same consciousness of divine light that is also falling on the mind and it becomes active or in a working condition also? When the soul is going out of body, the mind does not function. That means it depends on our soul. Is this concept correct? अच्छा सुनो, उसको समझाने के लिए बोलते हैं सूर्य है ना, सूर्य बिल्कुल प्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। लेकिन जब पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर, एक सरोवर के ऊपर रिफ्लेक्ट पड़ता है सूर्य, तो वहां पर लहरें उठती हैं। तो लहरों के कारण सूर्य जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और हमको तो सूर्य तो दिखता ही नहीं, हमें लहरें ही दिखती हैं। यस महाराज। तो हमारे मन के ऊपर जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को हम देख पाते हैं। हाँ महाराज। तो हमारा आत्मा हमेशा डिवाइन होते हुए भी जब मन के माध्यम से आता है तब मन जैसा होगा उसी प्रकार की हमें आत्मा दिखाई देती है। तो वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, अच्छा बुरा है वो भी इस प्रकार का दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं वही इसीलिए कहते हैं साधना के द्वारा चैतन्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैतन्य तो अपना रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। और इसी क्षण अगर ठीक ठीक रियलाइज कर लो कि मैं चैतन्य हूँ, आत्मा, मैं मन नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम इन ए मोमेंट खत्म हो जाएगी। यस महाराज जी। लेकिन नहीं होती, इसलिए हमको इतनी साधना करनी पड़ती है मन को प्योर करने के लिए। The whole process is of spiritualizing is purifying the mind. That's all. Oh yes, Maharaji. So, but Maharaji, I have a basic question. What is mind? Is it a matter? अच्छा सुनो, हमारे यहाँ पे उसको समझाने के लिए 3 शरीरों की बात की गई है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यस महाराज। स्थूल शरीर तो हम तुम समझ गए, व्हाट इज माइंड, मैटर, है ना। सूक्ष्म शरीर इज माइंड। अच्छा। इट इज ऑल्सो मैटर लेकिन सटल मैटर। अच्छा। हम स्वप्न देखते हैं तो शरीर तो नहीं देखता, शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन माइंड सारा काम करता रहता है। And this is also a सूक्ष्म शरीर, it is a शरीर, is a body, but it is subtle. और रात को जब गहरे सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं, तो वहां पर माइंड भी नहीं रहता है लेकिन अज्ञान बना रहता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। अच्छा। कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी। तो वो भी बॉडी बताया जाए, क्योंकि उसके बाद तुम कहोगे स्वामी जी वहां तो कुछ भी नहीं रहता, कोई बॉडी नहीं रहती, यही पूछोगे तुम। तो देयर आर 3 बॉडीज, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। You got my answer? Mind also is a body, but it is a causal body, subtle body. So that means the mind is getting created from the food and refined stuff. What do you take? If it is a matter? No, yes, it is said you have to take care of it.
You are depending upon food also, but what you listen also. जो सुनोगे उससे भी वो चेंज होगा. That means ऐसे हमारे मन में बॉडी का आइडिया केवल फिजिकल है. और इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा मन बदल जाएगा. लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम खाना आंखों से, कानों से जो भी हम सुन रहे हैं वह भी एक प्रकार का खाना है. मेंटल खाना है. वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है. हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इतने ग्रॉस थिंकर है कि हम फिजिकल बॉडी के सिवा और कुछ सोच नहीं सकते. लेकिन हमारा मेंटल बॉडी भी तो है. ये मेंटल बॉडी जो है वो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है इस मन रूपी शरीर में. इस सटल बॉडी में भी उसका प्रभाव पड़ता है. वो उसको प्रभाव कर. अच्छा महाराज जी. हाँ, और अगर खाना भी है, बहुत गरिष्ठ खाना खाया, बहुत पापी लोगों का छुआ हुआ खाया, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है. अच्छा महाराज जी. लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है आप कान, नाक, आंख से क्या विचार ले रहे हैं, उसका प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट. अच्छा. ओके महाराज जी. थैंक यू महाराज. आपका प्रश्न हुआ? हाँ महाराज जी. हाँ, लास्ट थिंग इज व्हाट इज द कनेक्शन. क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन. Maharaj, what is the connection between the soul and mind? What is the connection between the soul and mind? क्या सुनाई दिया? What is the correct connection? वो तो हमने बोला ना कि लहर और वो है लहर और आकाश सूर्य का. तो सोल जो है, जिसको आप आत्मा बोलते हो, वह रिफ्लेक्ट, वो हमेशा आनंदमय है, वह प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य है. वह मन के ऊपर पड़ रही है और उससे मन में रिफ्लेक्शन हो रहा है. हम उसी रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं. Yes, Maharaj. That means mind is a non-soul. Mind is a non-soul. It is non-atma. It is a non. अरे बोला ना कि. ठीक है महाराज जी. Thank you महाराज जी. अभी तो बोला तीन शरीर हैं जो आत्मा के ऊपर है. माइंड जो है वो आत्मा के ऊपर एक आवरण है कि हमने कपड़ा पहन रखा है, उस प्रकार एक माइंड पहन रखा है. अच्छा महाराज जी. अच्छा. 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर. ये तीनों जो है वो आत्मा के ऊपर आवरण है और उसके माध्यम से आत्मा का प्रकाश आ रहा है, आत्मा का ज्ञान आ रहा है. अच्छा. ओके. हाँ, थैंक यू महाराज जी. थैंक यू महाराज जी. प्रणाम महाराज. अच्छा, बाला सुब्रमण्यम. प्रणाम महाराज. प्रणाम महाराज. संजय जी महाराज. बाला को अनम्यूट करो. अनम्यूट हो गए महाराज. बोलो महाराज. क्वेश्चन पूछो बाला. महाराज, when I sit in for meditation. बाला सुब्रमण्यम आ गया. ओके. Maharaj, when I sit for meditation, my mind goes towards God certain second only. After that, it goes here and there. What is the method to avoid this? You have read this article? Yes, Maharaj. You have read this article, na? Yes, Maharaj. Maharaj has said, why do we not get God, think of, meditate God? Because we don't want God. We want the world, that's why the mind goes to the world. We don't want God, that's why mind will not go to God. We must like God. We don't want it. That is the problem. So this is the main problem, is we don't want God. We want everything of the world, but we don't want God. That's why it will go for a moment and then go away. The child will play, is always constantly thinking of toys. If you tell him to read the book, his mind will not go to the book. He will always think of the toys because he likes the toys. So first thing is try to love God.
That's why so many Leela Chintan etc. there. How compassionate Shri Ram Krishna is there, so loving Shri Ram Krishna there. If you go on thinking, then you will be able to do. Second, when you sit for meditation, open eyes, see picture of Shri Apne Ishta with open eyes for some time, 5 minutes, 7 minutes, and then meditate. Then you will be able to meditate with longer time. Third is, before sitting also you can read Vachanamrit or whatever it is, Bhagavad, etc. related to your Ishta. Then you sit for 5 minutes, and after that you read for, then you will be able to sit for a longer time. Okay? Okay? So I have given both the answers. First is loving God, and second is before sitting for meditation you must have preparation. Okay? Okay. Any questions? Your question is okay? Over. महाराज मेरा एक प्रश्न था। निवेदिता जी महाराज, ये जो कारण शरीर है वो जब से पूरा होगा। हाँ ठीक है, अगले बार पूछ लेंगे, कोई बात। वो अभी देखता हूँ दोबारा से ज्वाइन करेंगे। नहीं, आ गए हैं शायद, उनको अनम्यूट होना पड़ेगा बस। आवाज भी कैसे तो आ रही है? हाँ चलो, अनम्यूट हो गया। जी महाराज, ठीक है। निवेदिता मैडम आप पूछें सवाल। आई एम अनम्यूटेड, अनम्यूटेड हूँ। निवेदिता जी सवाल पूछें। निवेदिता जी आप कहिए, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आप सवाल पूछिए निवेदिता जी। मैं पूछ रही हूँ कि जब से चेंज होता है कि नहीं? नहीं, कारण शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। कारण और महाकारण क्या है? महाकारण महाकारण की चिंता मत करो। वो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा, तो भगवान के साथ में जो है, भगवान के कारण साथ में जो कारण शरीर है वो महाकारण है। ठीक है, ओके, बस इतना ही था। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हाँ। ओके ठीक। सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। संजय बंद करें? बंद करो। संजय बंद करते हैं। शांति मंत्र। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। अमृत जी नमस्ते। प्रणाम महाराज।